آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات۔ وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تعیناتی کی منظوری دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر سے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے خوش آئند قرار دے دیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ یحییٰ آفریدی کو پاکستان کا نیا چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ وزارت قانون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کو 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کی منظوری دی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر آصف علی زرداری 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس سے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کیا تھا۔ 8 ارکان نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں ووٹ دیا۔ جے یو آئی کے رکن کی مخالفت سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے حق میں ووٹ دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے تینوں ارکان کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی سینیورٹی کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کے مختلف بار کونسلز نے خوش آئند قرار دے دیا۔ سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسلز کا جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کا خیر مقدم۔ بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی متحرک۔ ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کے مختلف ونگ کے سربراہان سے عدالتی امور پر بریفنگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نامزد چیف جسٹس نے تمام ونگ کو ٹاسک کے ساتھ دوبارہ بریفنگ کی ہدایت کی۔ بطور چیف جسٹس نوٹیفائی ہونے کے بعد جسٹس آفریدی کی دن بھر کیا مصروفیات رہی، دیکھیے رپورٹ۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جہاں آج سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 3 کی سربراہی کرتے ہوئے معمول کے مقدمات کی سماعت کی، وہاں ان کی اہم ملاقاتیں بھی مصروفیات کا حصہ رہیں۔ ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ملاقات چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کی بھی نامزد چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ دونوں معزز ججز صاحبان نے نامزد چیف جسٹس کو مبارکباد دی۔ ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کی بھی ملاقات ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی 26 اکتوبر 2024 سے 3 سال کے لیے ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک کے پہلے نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے حلف برداری کی تقریب 26 اکتوبر کو ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جسٹس یحییٰ آفریدی سے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عدلیہ کے جسٹس صاحبان سمیت ملک کے معروف قانون دانوں سمیت اعلیٰ سرکاری اور سول حکام شرکت کریں گے۔ ایوان صدر کے سیکریٹری نے نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں 25 اکتوبر کو مکمل کر لی گئیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس صاحبان کو بھی حلف برداری کے دعوت نامے پر ایوان صدر کی جانب سے بھجوائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے آج مکہ روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ میں شرکت نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی 1 نومبر کو ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا۔ جسٹس منصور علی شاہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے فل کورٹ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث جسٹس یحییٰ آفریدی کی حلف برداری کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایات دائر کر دی گئی۔
शिकायत 2 शहरियों की जानिब से दायर की गई हैं। शिकायत दायर करने वाले शहरियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन और रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के लिए उकसाया। दोनों जजेस ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की। दोनों जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट में दी गई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के शाया निशान नहीं। शहरियों की जानिब से इस्तदा की गई है कि जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन को बरतरफ किया जाए। दोनों जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का आजाद हुकूमत के 77वें यौम तासीस के मौके पर खुसूसी पैगाम। उन्होंने कश्मीरियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज हम जिस खित्ते में आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो तवील सियासी और अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। आज़ाद कश्मीर की तकमील में शहीदों का लहू, ख्वातीन की कुर्बानियां और हिजरतों का एक दुश्वार गुजार सफर भी है। 1931 में 22 कश्मीरी शोहदा ने आज़ान की तकमील में सीने पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया। आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। हम किसी सूरत भी तहरीक आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं कर सकते। नोश की आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के क़याम के 77 साल मुकम्मल होने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो। आज हम जिस खित्ता की आज़ादी का दिन मना रहे हैं वो एक तवील सियासी और अस्करी जद्दोजहद के नतीजे में आज़ाद हुआ। उसकी आज़ादी में शहीदों का लहू, इस्सत माब, ख़वातीन की कुर्बानियाँ और हिजरतों का एक दुश्वार गुजार सफ़र भी शामिल है। 1931 के इन 22 शोहदाए कश्मीर को जिन्होंने अज़ान की तकमील में सीने पर गोलियां खाकर जाम शहादत नोश किया, आज उन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। हम किसी सूरत भी तरीके आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल कर पाएंगे। कौन कितने लोग लेकर आया, कौन पहुंचा और कौन सिर्फ वीडियो पैगाम भेजता रहा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और मुजाहिरों में तमाम लीडरशिप का रिकॉर्ड देखना शुरू कर दिया। पार्टी उमूर और मुजाहिरों में कारकर्दगी ना दिखाने वालों को शोकोज नोटिस जारी कर दिए। चकवाल से अयाज अमीर, सरगोदा से मियां खुदादाद और हारून एहसान पराचा को शोकोज जारी। तमाम टिकट होल्डर से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट अटक की मकामी तंजीम को मुकम्मल तहलील कर दिया। अटक की तंजीम अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ भी ना मिल सकी थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि शोकोज जारी होने वाले अराकीन ने हमसे राबिता किया है। उन्होंने कहा कि शोकोज वाले अराकीन पार्लियामेंट आए थे और मुलाकात भी हुई है। अराकीन के मुस्तकबिल का फैसला पार्टी करेगी जब वो शोकोज का जवाब देंगे। वकला हमेशा चाहते हैं अदलिया आजाद हो, अदलिया पर कदगन ना हो और जजेस गैर जानिबदार नहीं होने चाहिए। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई न हो सकी। अदालती वक्त खत्म होने के बायस रोबकार जारी न हो सकी। वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे। जराये के मुताबिक रोबकार जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत से जारी होनी थी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर, जज राजा जवाद अब्बास और जज रक्षिंदा शाहीन भी अदालती वक्त खत्म होने के बायस रवाना हो गए। रोबकार जारी न होने के बायस बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन न हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रही हैं, न रोबकार जारी हो रहा है। जिस जज ने रोबकार जारी किया वो गायब है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को बगैर किसी वजह तोशाखाना केस में फंसाया गया। तोशाखाना के असल मुजरिम आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हैं। बानी पीटीआई भी बोगस केस में अंदर हैं। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान को अगवा करके वोट लिया गया। जिस तरीके से आइनसाजी हुई मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है। आइन की सरबलंदी तक हमारी जंग जारी रहेगी। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी उसे लाए हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि इस वक्त ऐसे चीफ जस्टिस की जरूरत थी जो टीम लीडर हो। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती पर सीनियरिटी कम फिटनेस देखी जाती है। अदलिया में पोलराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये इंसाफ का इदारा है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियों का इख्तियार पार्लियामेंटेरियंस को है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम करना गैर कानूनी था। हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को कमजोर किया। रहनुमा पीटीआई का कहना है कि कानून साजी 25 करोड़ आवाम के लिए करनी थी, ना कि किसी खास फर्द के लिए। हम कानून साजी को तस्लीम नहीं करेंगे। मुनरिफ अरकान को शोकोज नोटिस जारी करेंगे। वोट देने वाले अरकान असम्बली का सोशल बाइकआउट करेंगे। जैन कुरैशी के वालिद हमारी पार्टी का बड़ा असासा।
पार्टी में कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन में हो, इस सब का एहतसाब होगा। वो एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कर रहे थे। हम इस असेंबली को लेजिटिमेट समझते भी नहीं है, यानी इसको हम लीगली हम इसको मानते नहीं। मुल्क के लिए कानून बनना होता है, 25 करोड़ आवाम के लिए कानून बनना होता है। ये किसी की जाती पसंद नापसंद पे नहीं, हम इशू ही बनाएंगे। कोई कानून साजी या कोई अखलाकी जवाब नहीं है। उसके और शोकात नोटिस इशू की गई हैं, इनके खिलाफ सोशल बाइकाट करे। उनके वालिद बहुत बड़ा आदमी है, हमारा बहुत बड़ा असासा है, लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो में जिस भी पोजीशन पे है पूरी तहकीक की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा हामिद खान कहते हैं कि मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद से दिनों में से था। आइन पर डाका मारा गया, आइन पर बहुत बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तान के वकला इस आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के तमाम बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस के जाने के दिन 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाएंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, हमारे जजेस केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। 26वीं आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह तहरीक को चलाया, सब ने देखा। विफाकी आईनी अदालत बेनजीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। आईनी अदालत का क़याम आम आदमी के रिलीफ के लिए था। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। इसे बेंच कहें या आईनी अदालत, काम वही होगा जो हुकूमत चाहती थी। पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं जिनमें हेडलाइंस मिलती हैं, उन पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। मैं ये क्लेम करता हूं, और अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मर्जी है, कि मुत्तफिका अमेंडमेंट मंजूर हुई है। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे मूवमेंट को, मैं कहूंगा, स्पीयरहेड किया, वो सबने देखा। एंड फुलफिल्ड द विजन ऑफ हिज मदर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। चाहे उसको बेंच कहें चाहे कोर्ट कहें, काम वही करेगी, हुकूमत चाह रही थी। बानी पीटीआई की बहन आज भी अदालत में बेयारो मददगार खड़ी थी। एंकर के सवाल पर जवाब देते हुए रऊफ हसन आबदीदा हो गए। वो एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू कर रहे थे। यार मैंने वो फुटेज फिर बार बार प्ले की है। आज बैरिस्टर गौर साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी मुलाकात हुई है, एंड वेरी हेल्पलेसली शी वाज सेइंग जो कर सकते हैं आप लोग ही कर सकते हैं, देयर इज नथिंग आई कैन डू। एंड yet again she was all alone today। आज भी वो अकेली थी। I hope you are able to do something about it। प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन जमहूरियत, अदलिया और अवाम दोस्त ही नहीं माहौल दोस्त भी है। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया के उन सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल हो गया जहां शिफाफ सेहतमंद माहौल की फराहमी और बेहतरी को बुनियादी इंसानी हक करार दिया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आर्टिकल 9 की रोशनी में माहौलियाती बेहतरी, मौसमियाती चैलेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निमटना हमारे दस्तूर का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खासतौर पर मुबारकबाद और खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आलमी माहौलियाती बेहतरी के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत नुमायां, ठोस, जामिया और अमली कदम उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बिरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम रही। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल स्कूलों, अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी कर रहा है। गजा में हजारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि है कि आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को नहीं रोक पाया। फ़लस्तीन के तलबा अपने दूसरे घर पाकिस्तान आए हैं। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। फ़लस्तीनी तलबा को सरकारी खराजात पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी।